My name is Karan Kothi, and today I'm going to explain the expression of the spherical conducting surface. So first of all, the Gauss law with surface which is conducting which is a conducting surface actually with in a spherical shape. So we will first draw the spherical surface. It is having three cases. First, outside the surface or outside the cell. Second, on the surface, at the surface. And third, inside the surface. So first we will draw the Gaussian surface actually, which is also called the spherical surface. In first case, outside the cell. Here it is the charge, a point charge outside the cell. So we will take a point charge Q naught. Outside the cell. So there it will we will make the Gaussian surface. We will take O as a center and P as a point charge, and the R as small r as a distance with first surface which is contacting with the distance, and second as a whole r. The electric field is equals to kq by r square. If we take more field, if we are finding the point of electric field at point, and the Gauss law states that which is if I say the formula, phi is equals to E dot ds with integration in a closed surface. Here it is getting the closed surface. Here we will calculate the force which is acting on the point. If we take like it is a point positive charge, and Q naught as a test charge, which is actually a point positive charge. So it will repel the force, and the force is acting as the far from the cell. So it
it will be far from the surface, and if we take the vector quantity of vector quotient, it will also be from afar away from the surface as perpendicular, and we have to calculate the area here. To calculate the DS area, we will take a small amount of area of the cell and integrate it with the whole part of the cell. The theta between the vectors will be cos theta, because cos 0 degree, because the vector area is always perpendicular to the surface, and the electric field force is also acting away from the surface, so the cos theta will be 0 degree. Here are the given via which we can find. क्या दूसरा एक्सप्लेन कर दो। दूसरा करोगे? नेशनल थोड़ा दूसरा करोगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ एक्चुअली क्या है ये चीज़। सो बेसिकली देखिए, ये एक्सप्रेशन करना चाह रहे थे कि हमारे पास सेल है, ठीक है ना, एक हमारे पास स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग सेल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। आपको पहले प्रॉब्लम समझिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चार्ज रख दिए क्यू, ठीक है, फिर ऐसा कुछ बना दिए, कुछ समझ रहे हैं। बहुत ही मतलब ऐसा है कि आप उसको प्रिपेयर करके नहीं आए अच्छे से, ठीक है। जो डेरिवेशन होता है ना, आपको उसको वेल प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद उसको आपको समझना है कि क्या है। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि हमको मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सो देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने आपको ये बोला था, पता नहीं, ठीक है ना, उसको वेल प्रिपेयर करके नहीं आए, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एक शेल है, मान लेते हैं, लेट वी हैव अ कंडक्टिंग शेल, ठीक है ना। अब ये कंडक्टिंग शेल है जिस पे एक चार्ज है, ठीक है ना। हमारे पास एक यहाँ पे कंडक्टिंग शेल है जिस पे एक चार्ज लेट से क्यूब है, ठीक है ना, वी है चार्ज क्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, समझ गए। अभी क्यू चार्ज है। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ये जो स्फेरिकल है, कैसी स्फेरिकल है। अब इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, मैं बोला कि अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस स्फेरिकल के कारण, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, समझ गए ना। वी ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। इस स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, इस पे चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज क्यूब है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, सरफेस पे कितनी, बाहर कितनी है, समझ गए। सो दिस आर द थ्री केसेस, ठीक है। तो कैसे देखते हैं जनरली, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। जनरली जब हमको ये देखना है कि भाई हम गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है जनरल, फ्लक्स इक्वल टू ओवर अ क्लोज सरफेस ई डॉट ds, ठीक है, ठीक है। दिस इज अ फ्लक्स
और इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो गॉस ने बताया था कि अगर एक क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स जो हो जाता है वो q डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द q बेसिकली? q इज बेसिकली चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। सो ये हमारा गॉस लॉ है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन ना गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, बट हम गॉस लॉ को हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। मैं बताया था वहां लगा सकते हैं जहां पर चार्ज जो है ना वहां पे सिमेट्रिक केस में लगा सकते हैं ये गॉस लॉ को, सिमेट्रिक केसेस में, ठीक है। वी कांट अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है ना, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनीवेयर। हम कहीं भी नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस लॉ को कहीं भी लगा सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम कहीं नहीं लगा सकते, हम सिमेट्रिक केसेस में लगाएंगे, ठीक है। ये होता है कि भाई वायर लाइन में ठीक है चार्ज इनफाइनाइट वायर है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी वहाँ लगा सकते हैं। या फिर शीट में इनफाइनाइट शीट उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर स्फेरिकल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब क्या सिमेट्रिक केसेस होते हैं, ठीक है, जनरली। सो वी कैन अप्लाई गॉसेस लॉ, ठीक है ना, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक केसेस, ठीक है। फ्लक्स के लिए आप कहीं लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिक केस में लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई ये वाला रीजन पहला रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये आपका दूसरा रीजन है, ठीक है, ये वाला दूसरा रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पर एक तीसरा रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। दिस आर द थ्री केसेस, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तीन केस रीजन में। तो अब मैंने बोला कि सिमेट्रिक केसेस में लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गॉस लॉ को। तो क्यों? देखो आपको इसलिए लगाना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये कांस्टेंट होगी, मान लो कि ये बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन ds इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? q डिवाइड बाय ये इंटीग्रेशन ds मतलब क्या है? ये एरिया हो जाएगा, देखेंगे हम, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस लॉ लगा करके, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो मुझे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते हो, ठीक है। आपको गॉस लॉ लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे सबसे पहले। तो आपने इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस तरीके से। अब आप जैसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने गॉस लॉ लगाया, E डॉट ds ओवर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये आपने गॉस लॉ लगा दिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, उसके अंदर चार्ज तो कुछ है ही नहीं है भाई। चार्ज ये q इनक्लोज जो हम लिख रहे हैं चार्ज जीरो है, तभी चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जीरो होगी ना। सो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो हम क्या देते हैं, इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होगा, ये अपना गॉस लॉ है, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर हमको बाहर निकालना है लेट से r डिस्टेंस पर, सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शेल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, ठीक है। ये हमने केस 1 में लिया, फर्स्ट केस में निकाला, अब थर्ड केस में निकालना है। तो अगर हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो फर्स्टली हमको जहाँ निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वहाँ क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। सो बेसिकली वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। इस तरीके से हम यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। अब आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा मैंने, ठीक है ना, ताकि देखो आपको गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करनी है ताकि जो चार्ज है ना पूरा अंदर आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी ताकि पूरा चार्ज है ना इस स्फीयर के अंदर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर, ठीक है, अब आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने ये लगाया इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। दिस व्हाट इज द q? q इज अ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर कितना चार्ज है? ये पूरा q चार्ज है ना इसके अंदर, समझ गए। अबे ठीक है, आप देख सकते हो E डॉट ds है, तो आपने एक गॉसियन सरफेस लगाया। तो अगर आप चाहो देख सकते हो कि भाई अगर कहीं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ds ना, छोटा एरिया ले लेते हैं, मान लो ये स्फीयर ले रहा हूँ छोटा एरिया, तो इस पे एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इससे थोड़ा सोचो अच्छे से, थोड़ा एनालाइज करो चीजों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds इधर, तो एंगल कितना होगा? जीरो। तो वो जीरो यहाँ a डॉट b लगाएंगे ना, ab cos थीटा, वो जीरो वैल्यू 1 होती है। सो वी कैन राइट e इंटीग्रेशन e ds। सो e को मैं बाहर ले लूँ, e को बाहर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है।
जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वी कैन टेक आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है ये भी देख लो, क्योंकि भैया यहाँ पर ये r डिस्टेंस पे देखो एक स्क्वायर बना है, ठीक है। तो स्क्वायर जो बना है उस आप सेंटर से देखोगे तो हर जगह r डिस्टेंस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, q by r स्क्वायर 1.4 से। सो दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, हर जगह स्क्वायर पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। सो वी कैन टेक आउटसाइड, ठीक है, और इंटीग्रेशन ds इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, समझ गए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो ds क्या है, इंटीग्रेशन ds क्या है, छोटा छोटा ds पूरे स्फीयर पे, स्फीयर हमने ड्रॉ किया उसमें छोटा छोटा ds है ना, तो पूरा छोटा छोटा ds लोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्फीयर आ जाएगा, ठीक है ना, और रेडियस स्मॉल r वाली, तो इसलिए क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है ना, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, समझ गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो वी कैन राइट area of sphere, okay, so we can write E into 4 pi r square equal to divide by q divided by epsilon। और इस q को हम क्या लिख सकते हैं भैया, हमें अंदर है ना, this q is a charge enclosed within the Gaussian surface, so we can write this simply as a q, capital Q, okay। so you can write simply electric field equal to, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/4 pi epsilon q divided by r square, so this is electric field, ठीक है, ठीक है। सो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो aq by r square। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर, स्फेरिकल चार्ज, ठीक है, उस चार्ज इज बेसिकली q, इससे आप r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, इतनी आती है। तो ये आपने नोटिस, ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फॉर अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज ये इस तरीके से है ना, अगर एक चार्ज q रखा हुआ है यहाँ पर, r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बेसिकली aq by r square, इसकी तरह है। इसका मतलब ये जो स्फीयर में जो चार्ज है ना, दिस इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, तो पॉइंट चार्ज हम समझ गए, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, a2 by r square, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हिच आर एट r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये वाला जो स्फीयर में जो चार्ज है ना, दिस इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि द होल चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, समझ गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब सोचो जैसे हमने ये डेरिवेशन किया, अगर आपको सरफेस पे करना है, ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ इसको यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं कि चार्जेस बेसिकली सरफेस पे ही है, ठीक है ना, अभी दिखाने के लिए मैंने इतने बड़े-बड़े बना दिए, बट द चार्जेस ऑन द सरफेस। तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा इसके इधर, तो मैं ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ इसमें चार्ज अंदर आ जाता है, ठीक है ना, तो बहुत उसके पास है, लेकिन समझाने के लिए दूर बना दिया, ठीक है। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। अब इसकी जो यहाँ डिस्टेंस है वो कितनी होगी, मतलब r होगी ना, r होगी नहीं होगी। सो द बेसिकली द फॉर्मूला इज आल्सो यूजिंग दिस, अगर हम इसमें इस सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज करें तो इंटीग्रेशन e डॉट ds इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन ही होगा, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी स्फीयर में, सो बेसिकली e बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ds, यहाँ पर जो q है इसके अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, समझ गए। अब डिवाइड बाय एप्सिलॉन, और यहाँ पर जो ds है ये क्या होगा, छोटे छोटे ds, समझ रहे हो, जैसे मैंने छोटा सा स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर ले लिया तो ds इधर ही होगा और e इधर ही होगा, समझ रहे हो, थीटा 0 होगा, तो ये ठीक है, ds जोड़ोगे सब टोटल तो स्क्वायर का एक वो आ जाएगा सरफेस एरिया। सो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R में, सो यू कैन राइट बेसिकली E into 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है यहाँ से ये कितना आ रहा है, kq बाय ये कैपिटल R स्क्वायर आ रहा है, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस कितना आ रहा है, kq बाय कैपिटल R स्क्वायर, इट इज आल्सो अ पॉइंट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर भी चार्ज जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, समझ गए। तो सरफेस कितना है, बाहर जाओगे, ठीक है, सरफेस से आगे जा रहे हो तो ये r के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और अंदर कितना 0 है। इफ यू वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप इसका यहाँ पर डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। अभी ये कैपिटल R मान लेता हूँ यहाँ पर मैं, तो कैपिटल R तक तो कितना है, मतलब कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0 है ना, ये 0 बनेगी यहाँ, समझ रहे हो, ये 0 है यहाँ। इसके बाद यहाँ कैपिटल R में कितना है, kq बाय कैपिटल
ये कुछ यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, k³ बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इतनी हो गई यहाँ पर आर पे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, सो बेसिकली दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आया ग्राफ ये? तो इस तरीके से इसका वैरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैपिटल आर तक 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद एक यहाँ पर ये इतनी हो जाएगी k³ बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद ये 1/आर स्क्वायर क्या करेगी, वैरी करेगी। समझ आया कि नहीं आया? किसी को पूछना है? तो इस तरीके से थोड़ा सोचो तो सही क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहाँ से गॉसियन सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर हम ये बेसिक फॉर्मूला अपने यूज करते हैं दिस, ठीक है ना, ये चीज हम अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बताया हमें सब चीजें भी समझाने के लिए आपको। समझ आया? ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? इस तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर अच्छे से करा करो, ठीक है।